Diksha, then you can start with you. Done, ma'am. Good evening, everyone. So, I welcome you all to day three of this workshop on decoding mutual funds. And I hope all of you are having a great learning outcome out of this workshop. And we'll see you in further classes too, and further days too. So, this is day three of the workshop, and we have with us Sonika ma'am and Ranjana ma'am once again to take up the course and explore the further chapters. So now I would like to invite Sonika ma'am to take up the course further. Sonika ma'am, are you here? There I'm audible, right? Hello. Yes, yeah. Please take up the further chapters, ma'am. Thank you so much. Sure. Thanks. So, is the screen visible to all? Yes, ma'am. It Yes, is ma'am. visible. Okay. So we have अभी तक हम लोगों ने chapter 1, 2, 3, 4, 5, 6 हम लोगों ने complete कर ली हैं. Chapter 1 or 2 was basically for the mutual fund investments as a class of investment and mutual fund industry overview. Then chapter 3 and 4 are about they are about the regulatory environment for the mutual fund industry and also the accounting, taxation and valuation of mutual fund investments. And then chapter number 5 and 6, the distribution channel. So today we are going to start with chapter number 7, which is the investor services. Before we can just start, I would like to ask from the students which language are they comfortable mostly. मतलब आपको कौन सा लैंग्वेज में कंफर्ट है, हिंदी, इंग्लिश और बोथ मिक्स? I would really like to hear it from the students. Anyone, please? Ma'am, I think we would prefer English. Okay, so let's begin with chapter number 7, investor services. So basically यहाँ पे हमारा जो investor services होता है, इसमें one has to complete the KYC documents for that investor, which includes the identity proof as well as the address proof. So identity proof के लिए PAN card is the best document, because उसमें एक फोटो भी होता है और उसमें उनका इनकम टैक्स का पैन नंबर भी होता है. Then proof of address में it could be passport, voters ID card, ration card, driving license, bank account statement, या कोई यूटिलिटी बिल हो गया, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया या लैंडलाइन का कोई बिल हो गया, वो that can be considered as the proof of address. एंड पैन नंबर कहाँ पे ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट्स के लिए पैन नंबर इज मैंडेटरी. इट्स मैंडेटरी टू कोड द पैन नंबर व्हाइल यू इन्वेस्ट इन द म्यूचुअल फंड्स. कहाँ पे हमें पैन नंबर नहीं देना है, दैट इज दिस क्लॉज अबाउट. इट टॉक्स अबाउट दैट if the mutual fund investment through the SIP route does not exceed 50,000 rupees, there is no need for the PAN number to be given. So basically जहाँ पे SIP आपके पूरे साल के
12 मंथ्स पीरियड में 50,000 रुपये से ज़्यादा नहीं जा रहे हैं, वहाँ पे पैन नंबर की ज़रूरत नहीं होती है। और एनी इन्वेस्टमेंट अबव 50,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर या एक लमसम अमाउंट, उसमें पैन नंबर देना मैंडेटरी है। अगर कोई जॉइंट इन्वेस्टमेंट है, let's say a mutual fund investment has two holders, I mean two applicants, तो उस केस में दोनों का ही KYC डॉक्यूमेंट लगता है। तो दोनों का आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी देना है, दोनों का ही प्रूफ ऑफ एड्रेस भी देना है। नाउ आजकल एक ऑल म्यूचुअल फंड कंपनीज आर एडवाइज टू गो फॉर FATCA and CRS compliances. FATCA is the full form for FATCA is Foreign Account Tax Compliance Act, and CRS is Common Reporting Standards. So basically FATCA एक form होता है और CRS is also a form in which the investor has to mention, investor को ये declare करना पड़ता है कि वो इंडियन टैक्स के प्रोविजन से गवर्न है and not the provisions related to the US Internal Revenue Service. So basically, just if I just read from the text, that to identify foreign reportable accounts and collect such information as required under the said provisions and report the same to the US Internal Revenue Service or any other foreign government or to the Indian tax. So basically investor को ये declare करना है whether that is governed under the Indian tax or the US tax. उसमें बाकी आपकी इंफॉर्मेशन भी होती है, which citizenship the investor is carrying, वो उनकी नेशनैलिटी क्या है, इंडियन है या फॉरेन नेशनल्स हैं, प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ का है, टैक्स रेजिडेंसी, तो बेसिकली उनका जो टैक्स डिफाइन होता है, जो उन्हें टैक्स पे करना है वो कहाँ का है, वेदर इंडिया या आउटसाइड इंडिया, वो सारी चीज़ें उस फॉर्म में चेक बॉक्स होते हैं, उसे उनको फिल करना होता है। Then the डीमैट अकाउंट, सो जो बेसिकली अभी हम इसमें एक फॉर्म, ये दीज आर द रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू दी फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि हमारे इन्वेस्टमेंट फॉर्म में क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान देनी है या क्या क्या पेपर वर्क या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। सो फॉर डीमैट अकाउंट the investor has to tick the checkbox whether it has a demat account or not, और whether जो सिक्योरिटीज या जो इन्वेस्टमेंट वो खरीद रहे हैं उसे डीमैट फॉर्म में रखना है या इट हैज़ टू बी इन फिजिकल फॉर्म पेपर स्टेटमेंट, तो वहाँ पे उन्हें डिक्लेयर करना पड़ता है। अगर वो डीमैट फॉर्म में रखेंगे इन्वेस्टमेंट को, देन द म्यूचुअल, वो इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड की स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में नहीं दिखेगी, रादर जिस बैंक का या जिस डिपॉजिटरी का वो डीमैट अकाउंट है वो उसकी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में वो इन्वेस्टमेंट नजर आएगी। सो लेट्स से एक इन्वेस्टर ICICI प्रूडेंशियल का कोई स्कीम खरीदता है म्यूचुअल फंड का, देन एंड चेक्स द डीमैट अकाउंट दैट ये इन्वेस्टमेंट डीमैट फॉर्म में रहनी चाहिए, and for that the demat account of that investor is with ICICI Direct. उस केस में ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट स्टेटमेंट में वो इन्वेस्टमेंट नहीं दिखेगी, बल्कि वो इन्वेस्टमेंट जो ICICI डायरेक्ट के उसका जो अकाउंट है उसमें वो इन्वेस्टमेंट नजर आएगी। देन ट्रांजैक्शंस विद म्यूचुअल फंड्स, तो हम लोगों ने पहले भी इसे वी हैव गॉन थ्रू इन द पास्ट एज वेल कि द स्कीम्स आर अवेलेबल ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड।
ओपन एंडेड आर जो होती हैं वो अवेलेबल रहती हैं सारे टाइम टू इन्वेस्ट और टू रिडीम. NFO जो होता है that is available for a particular period of time. Basically that is the close ended scheme. उसके लिए कुछ एप्लीकेशन फॉर्म्स होते हैं जो भरने पड़ते हैं फॉर द इन्वेस्टमेंट to be made by the investor. Now we are at this filing the application form for mutual funds. अब हमें जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करनी है म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए, व्हाट आर द की रिक्वायरमेंट्स इन दैट फॉर्म, वो हमें वी विल जस्ट गो थ्रू. पहला, जैसे डायरेक्ट प्लान या रेगुलर प्लान, हम लोगों ने डिस्कस किया है कि डायरेक्ट प्लान वो होता है जिसमें देयर इज नो कमीशन विच इज बीइंग पेड टू द डिस्ट्रीब्यूटर. यहाँ पे उसकी NAV हाई होती है, रिटर्न अच्छी होती है और इन्वेस्टर अपने खुद के डिसीजन पे उस स्कीम के डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करते हैं. तो उस वहाँ जैसे ही इन्वेस्टर डायरेक्ट प्लान पे टिक करेगा, then there is no need for the ARN or registered investor advisor number. ARN नंबर की जरूरत नहीं पड़ेगी. और अगर इन्वेस्टर रेगुलर प्लान सेलेक्ट करते हैं तो उसमें जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है या जो भी ब्रोकर एजेंट है उसका ARN नंबर डालना जरूरी है. Second is the unit holder information, basically the investor information. So a mutual fund investment can have three maximum up to 3 holders. So there could be 3 joint holders for any investment. So investment or जो folio बनता है, so basically how does it happen is that once the after the receipt of funds by the mutual fund house, the mutual fund house creates a folio number under that PAN. So the folio number represents the entire investment made by the investor with that mutual fund house. So there could be single folio number under which multiple schemes can be invested, or sometimes if the folio number is not known, अगर folio number investor को पता नहीं होता है तो multiple folios भी create हो जाते हैं. So better रहता है कि investor always अपना folio number mention करे for investment in any scheme. So let's say अगर HDFC म्यूचुअल फंड की 5 स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एक ही फोलियो में 5 इन्वेस्टमेंट हो सकती हैं या फिर 5 फोलियो अलग अलग भी बन सकते हैं, बट मैनेजमेंट ऑफ फोलियो बिकम्स डिफिकल्ट. So it's better to have one folio which carries all the information related to the investment. Now the question is, क्या minor unit holder बन सकते हैं? Yes, minor भी investor हो सकते हैं, provided the investment is made through the guardian. So till the minor acquires the age of 18 years, the investment mentions the name of the minor as well as the guardian. जैसे ही वो 18 साल के होते हैं, then the investment basis the documents given by the investor, that investment the details under the investment gets changed from minor to major. Sometimes this is the power of attorney also, the investments can be managed. Let's say a investor is a very senior citizen, then they can give a power of attorney to a particular person so that the investment can be managed. Other KYC details we have discussed, FATCA and CRS details.
in which one has to mention the place of or city of birth, country of citizenship, nationality, and the tax residency of that investor, whether in India or outside. Bank details are required because once the redemption is placed, then the mutual fund house will redeem the investment and credit the account, the details of which is given by the investor with the redemption proceeds. So bank details is important for that purpose. And it is always advisable कि जो बैंक से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, only those bank details should be given for the redemption as well. इन्वेस्टमेंट डिटेल्स, उसमें बेसिकली हमारा इन्वेस्टमेंट स्कीम होता है, उसमें प्लान होता है, रेगुलर डायरेक्ट प्लान, ऑप्शन होता है, ग्रोथ ऑप्शन या डिविडेंड ऑप्शन, पे आउट ऑप्शन होता है, वेदर ऑन मैच्योरिटी या फिर ऑल यूनिट्स या फिर पर्टिकुलर अमाउंट एट द टाइम वी फिल दिस एप्लीकेशन. पेमेंट डिटेल्स वी हैव टू मेंशन इन द फॉर्म कि किस बैंक का चेक या फिर किस बैंक का RTGS NEFT हम लोग कर रहे हैं, basis which that investment will be made. So there are two different details, payment details and bank account details. Bank account details for redemption to be used by the mutual fund house at the time of redemption. और पेमेंट डिटेल्स में जो इन्वेस्टर अपना चेक दे रहा है, अपनी पेमेंट कर रहा है, वो डिटेल्स डाली जाती हैं. यूनिट होल्डिंग ऑप्शन वी हैव डिस्कस, या तो फिजिकल पेपर मोड में रहेगा या फिर डीमैट मोड में रहेगा. डीमैट मोड में रहेगा तो वो उसकी स्टेटमेंट डीपी जनरेट करते हैं, और फिजिकल मोड में रहेगा तो उसकी स्टेटमेंट म्यूचुअल फंड हाउस देता है. Nomination, it is always advisable to nominate the investment by declaring the nomination in that form itself. Minimum investment. So that minimum investment is defined by every mutual fund house for every scheme as per the documents available, like scheme information document or key information memorandum. It could be as low as 500 rupees and it could be, let's say, 10,000 rupees per SIP or per investment tranche. Additional purchases, let's say investor ने पैसा invest किया हुआ है एक स्कीम में एंड मार्केट लो हो गया और उसे दोबारा से इन्वेस्ट करना है, तो उस केस में उसे पूरा KYC और पूरी एप्लीकेशन नहीं फिल करनी है. एक ट्रांजैक्शन स्लिप आती है जिसमें दैट इन्वेस्टर कैन सिंपली राइट फोलियो नंबर, अमाउंट एंड द स्कीम, और वो इन्वेस्टमेंट हो जाती है. सो additional purchase can only be made in the case of open-ended schemes. Online transactions. So mutual fund हम online भी खरीद सकते हैं rather than filling the physical form. हम लोगों ने पिछले सेशन में बात की थी कि म्यूचुअल फंड हाउसेस की अपनी वेबसाइट होती है जिसमें हम अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर दें. So then the investor can do purchases, can do redemptions, can get the statement of account, daily NAV, सब कुछ उसे उसी पोर्टल से मिल सकता है. So online transactions can be through the website of that mutual fund house. पेमेंट मैकेनिज्म फॉर परचेज, एडिशनल परचेज, व्हाट मतलब इसका ये मतलब होता है कि हम किस मेथड या किस मोड से हम पेमेंट करने वाले हैं. द इन्वेस्टर विल मेक द पेमेंट. इसमें होता है एक तो चेक से कर सकता है इन्वेस्टर कि एक चेक दे दे,
डीडीज भी दे सकते हैं, बट डीडीज जनरली नहीं यूज करते हैं, तो चेक ज़्यादातर चेक से ही होता है. देन आजकल इलेक्ट्रॉनिक मोड्स ऑफ पेमेंट्स आर अवेलेबल लाइक इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, आधार enabled payment services, national unified platform, e-wallets, credit cards, debit cards, SBA, application supported by blocked amount, cash में भी pay कर सकते हैं. So let's briefly understand what are the modes of payment electronically. चेक में एक है कि हमारा जो चेक होना चाहिए वो दैट शुड नॉट बी मोर देन 3 months ओल्ड, बिकॉज अगर वो 3 months ओल्ड हो गया तो वो स्टेल चेक हो जाएगा. इलेक्ट्रॉनिक मोड्स ऑफ पेमेंट होते हैं आपके, जैसे इंटरनेट बैंकिंग हो गया, इसमें आप ECS के थ्रू भी कर सकते हैं. यू कैन गिव द मैंडेट while filling the form, आप मैंडेट दे सकते हैं कि ये मेरा बैंक है और आप ECS के लिए I give my acceptance. So म्यूचुअल फंड हाउस विल अप्रोच योर बैंक, इन्वेस्टर्स बैंक, और वो बैंक से ओके लेगा कि ये हम मंथली या पीरियोडिकली SIP के लिए हम आपको ये रिक्वेस्ट भेजेंगे, और बैंक हैज़ टू ऑनर दैट. Once the investor gives the acceptance, mutual fund houses approach the bank and bank will also accept, and then auto debit from the investor account starts for the SIPs. M-banking is basically the mobile banking, which is the mobile app for the internet banking provided by the banks. UPI, we all understand there are so many UPI apps available like Bheem, SBI UPI app, HDFC, iMobile, PhonePe, Aadhaar app. So this can be downloaded in the phone, and then a virtual payment access can be created through which the payment can be made to the mutual fund houses. Aadhaar linked is also same. It's basically bank-to-bank transactions using the Aadhaar number of the customer. Though it's not very popular, but it is also one of the modes available. Then National Unified USSD platform. So ये वाला जो मोड है, इसके लिए आपको ना तो स्मार्टफोन चाहिए ना इंटरनेट चाहिए. ये बेसिकली एक SMS के थ्रू, एक नॉर्मल SMS के थ्रू आपका इन्वेस्ट हो सकता है, बट इसकी लिमिट होती है कुछ 500,000 रुपये ही, इससे आप पे कर सकते हैं वन टाइम. Cards like debit cards or credit cards, not much to say about it. Then e-wallets like आपका Paytm हो गया या आपका Google Pay हो गया. These are the e-wallets which have also started giving the investment services for the mutual fund houses. But again, the e-wallets का जो amount has been restricted to 50,000 per investor per financial year. Then there is SBA, application supported by blocked amount. Basically जब हम अपने हमारा जैसे I'll give you the example, जैसे SIP हमारा, हमने म्यूचुअल फंड हाउस को बोला है कि हमारे 5 तारीख 15 तारीख में ये SIP लगेगा, और हमने उसे ऑनलाइन पोर्टल से खरीदा है वो वाला स्कीम. Then what happens कि on the date of debit, basically the depository participant जिसका डीमैट अकाउंट होता है वो उसे ब्लॉक कर देता है फंड्स को. दैट दिस इज कॉल्ड द एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट. वो ब्लॉक कर देता है आपके अवेलेबल फंड्स में से, सो दैट वो आपकी जो SIP की इंस्टॉलमेंट है जब वो हिट करे बैंक में तो वो उसे ऑनर कर पाए. दिस इज इन सिंपल वर्ड्स, दिस इज द SBA. And then cash payments up to 50,000, it can be per investor, per mutual fund, per financial year. So an investor can invest, let's say 50,000 in HDFC fund, 50,000 in ICICI, 50,000 in, let's say, DSP per year, per financial year.
allotment of units to the investor. जो भी whatever money the mutual fund house has received towards the investment, that investment is units are being allocated to the investor basis the prevalent NAV. जो भी NAV होती है, ओपन एंडेड फंड्स के केस में डे एंड की NAV हो जाएगी, और जो क्लोज एंडेड होते हैं, जो NFU होते हैं, उसमें 10 रुपीज का होता है. बोनस इशू में इन्वेस्टर हैज टू पे नथिंग, उसके लिए उसको कुछ नहीं पे करना है. The bonus declared by the mutual fund house, let's say 1:3 bonus. In this case, the investor is allotted 1 new unit for every 3 units already held. 1:3 में 3 units अगर investor already hold कर रहा है तो उसको एक additional free of cost bonus unit मिलेगी. तो बोनस इशुएंस का ये इम्पैक्ट होता है कि आफ्टर द बोनस इशुएंस एंड अलॉटमेंट ऑफ बोनस यूनिट्स, वो NAV ऑफ दैट स्कीम गेट्स रिड्यूस्ड. NAV उसकी घट जाती है. क्यों? क्योंकि हमारी यूनिट्स बढ़ जाएंगी, बट हमारा एसेट पूल उतना ही है म्यूचुअल फंड स्कीम का. म्यूचुअल फंड स्कीम का एसेट पूल डिवाइडेड बाय इंक्रीज नंबर ऑफ यूनिट्स, तो NAV घट गई, हमारी कम हो जाएगी. Then there is instant access facility, IAF, which is basically available for liquid schemes only, in which case up to 5,000 or 50,000 or 90% of the value of the investment, whichever is lower, उसका अगर रिडम्पशन आप करते हैं तो उसका क्रेडिट आपको सेम डे मिल जाएगा. आपको ये नहीं कि T+1 या T+2 2 दिन तक वेट करना होगा. आपको लिक्विड फंड्स के केस में 50,000 तक का जो भी रिडम्पशन है वो आपको सेम डे आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा. नाउ कट ऑफ टाइमिंग्स, अगर नॉन लिक्विड फंड है तो 3 बजे तक, उसकी भी लिमिट्स हैं. अगर 2 लाख से कम है तो 3 बजे तक आपको सेम NAV मिल जाएगी, और अगर 2 लाख से ज़्यादा है तो आपको जिस दिन फंड्स रियलाइज होंगे उस दिन की NAV मिलेगी. सेम फॉर परचेज ऑफ लिक्विड फंड्स. उस केस में 2 बजे तक अगर आपके फंड्स मिल गए तो आपको 1 दिन की NAV एक्स्ट्रा मिलेगी. अगर आप देख सकते हैं तो इसमें लिखा है प्रीवियस डे NAV, विच मीन्स कि आपको 1 दिन की, पिछले दिन की आपको NAV मिल रही है, येस्टरडे NAV. तो आपको आज फंड्स आपने दिए, आपको कल की भी NAV मिल गई और आपको आज की भी NAV मिल गई. सो लिक्विड फंड्स आर देयरफॉर वेरी, इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट जब आपके पास 2-3 दिन का पैसा आपको इन्वेस्ट करना होता है. और अगर आपके फंड्स म्यूचुअल फंड हाउस को 2 बजे के बाद मिलते हैं तो फिर आपको सेम डे NAV इज एप्लीकेबल, तब आपका 1 दिन का NAV लॉस हो जाता है. ये तो हो गया परचेज. रिडम्पशन के केस में 3 बजे तक रिडम्पशन ली जा सकती है, और उसमें पिछले दिन की यानी येस्टरडेज NAV विल बी एप्लीकेबल, और आपको फंड्स 50,000 तक के फंड्स आपको सेम डे मिल जाएंगे. टाइम स्टैंपिंग. टाइम स्टैंपिंग इज नथिंग, जो भी हमारा, हमने अभी ये कट ऑफ टाइम पढ़ा है उसके हिसाब से होता है कि म्यूचुअल फंड हाउसेस दे फॉलोज द प्रैक्टिस ऑफ टाइम स्टैंपिंग, कि उनको ये रिक्वेस्ट कितने बजे मिली या ये फंड्स उनके अकाउंट में कितने बजे हिट हुए, तो वो उस टाइम को नोट कर लेते हैं या वो स्टैम्प कर देते हैं, सो दैट देयर इज नो डिस्प्यूट बिटवीन द म्यूचुअल फंड हाउस एंड द इन्वेस्टर कि किस दिन की NAV लगेगी फॉर परचेज या किस दिन की NAV लगेगी फॉर द रिडम्पशन. इन्वेस्टमेंट प्लान्स एंड सर्विसेज, हम लोगों ने प्लान ये देखा था कि हमारा डायरेक्ट प्लान रहेगा या रेगुलर प्लान रहेगा. अब हमारे पास ऑप्शंस हैं कि हमारे पास ऑप्शंस कौन से अवेलेबल हैं अंडर दीज प्लान्स. सो ये आपके डिविडेंड भी हो सकते हैं और ग्रोथ हो सकते हैं. सो डिविडेंड इज समथिंग कि उसका पे आउट इज डिफाइंड, उसका पीरियोडिक पे आउट इज डिफाइंड.
वो डिविडेंड या तो आपको पे आउट हो जाता है, विच इज दिस डिविडेंड पे आउट ऑप्शन। इस केस में व्हेनेवर द डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, जब भी म्यूचुअल फंड हाउस डिविडेंड डिक्लेयर करता है, चाहे वो डेली हो या फिर एक मंथ का हो या और कोई पीरियड हो, तो वो डिविडेंड आपको आपके अकाउंट में, इन्वेस्टर के अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, और उस क्रेडिट होने के बाद आपकी एनएवी गिर जाती है, द एनएवी गेट्स रिड्यूस्ड, और इसमें टैक्स पेमेंट भी एप्लीकेबल हो जाती है। सेकेंड ऑप्शन इज डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। इस केस में आपका जो डिविडेंड होता है, जो म्यूचुअल फंड हाउस डिक्लेयर करता है, इंस्टेड दे पे टू द इन्वेस्टर, वो इन्वेस्टर को पे नहीं करते हैं, बल्कि उसकी एनएवी में वो ऐड करते चले जाते हैं। वो डिविडेंड री इन्वेस्ट कर देते हैं नए एसेट्स में, तो इससे एनएवी बढ़ जाती है। ग्रोथ ऑप्शन इज कि उसमें डिविडेंड डिक्लेयर नहीं होता है, उसमें सिर्फ जो भी एसेट के ऊपर इनकम आ रही है, लेट्स से एक उन्होंने म्यूचुअल फंड हाउस ने इन्वेस्टर के फंड से मनी मार्केट स्कीम्स में इन्वेस्ट किया, तो वो मनी मार्केट की स्कीम्स पे जो इंटरेस्ट आया या शेयर्स पे कोई डिविडेंड आया, तो वो उसको फर्दर इन्वेस्ट करते रहते हैं, जिससे वैल्यू आपकी स्कीम की वैल्यू बढ़ती रहती है, और एनएवी आपके पूरा हाई एनएवी रहती है। सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि अगर कोई इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने का सोच रहा है, तो उसे ग्रोथ ऑप्शन ही दिया जाए। और अगर कोई इन्वेस्टर को लेट्स से मंथली पे आउट चाहिए या पीरियोडिक पे आउट चाहिए, उसकी कुछ फिनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं या रिक्वायरमेंट हैं, तो उस केस में उसे डिविडेंड पे आउट ऑप्शन लेना चाहिए। Now the concept of SIP, SWP, STP and DTP. इसमें अब हमने ये पढ़ लिया कि म्यूचुअल फंड स्कीम्स के दो प्लान हैं, डायरेक्ट और आपका रेगुलर। उसके अंदर हमारे 3 ऑप्शन है, ग्रोथ हो गया या डिविडेंड। डिविडेंड के भी 2 तरीके हैं, या तो डिविडेंड पे हो जाएगा या डिविडेंड री इन्वेस्ट हो जाएगा। बट हाउ टू इन्वेस्ट, हम कितना अमाउंट इन्वेस्ट करें, दैट इज द सिस्टमैटिक ट्रांजैक्शंस. So the ways the investment can be made is, one is the lump sum amount, which is self-explanatory, कि एक lump sum amount इन्वेस्टर ने दे दिया कि 25,000 50,000, और वो उस दिन की NAV से इन्वेस्ट हो गया। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, कि वो रेगुलर पे होता रहे, इन्वेस्ट होता रहे, और उस पे NAV भी रेगुलर आपकी एवरेज होती रहे, और एकदम लमसम आपके इन्वेस्टर को पैसा ना खर्चना पड़े। तो we'll start with SIP. SIP is systematic investment plan. Basically, this is one of the best ways to invest in the mutual fund schemes. इसमें आप पीरियड डिफाइन कर देते हैं कि 5 तारीख को या 15 को या 24 को इन्वेस्टर के अकाउंट से पैसा डेबिट होगा, और म्यूचुअल फंड हाउस को वो पैसा मिल जाएगा, और वो जो पैसा मिलेगा उस दिन की NAV लगेगी। तो अगर मार्केट्स आर राइजिंग, लेट्स से मार्केट्स आर राइजिंग मींस दैट निफ्टी इज इंक्रीजिंग, तो उस केस में आपकी पहले दिन की NAV कम मतलब हाई होगी, उसके बाद NAV कम होगी, फिर कम होगी, इस तरह NAV बढ़ती जाएगी और यूनिट्स कम होती जाएंगी। तो इन अ वे एक मंथ में आपका एक एवरेज NAV और एवरेज यूनिट्स आ जाएंगी, वर्सेस कि अगर आपने लमसम अमाउंट किया होता है एट दी हाई NAV और उसमें आपको कम यूनिट्स मिलते हैं। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, इस केस में बेसिकली ये होता है कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका जो रिडम्पशन होता है वो एक लॉट में ना करके आप अपनी रिक्वेस्ट दे सकते हैं फंड हाउस को कि मेरी जो ये इन्वेस्टमेंट है, आप इसे मेरे को हर मंथ में इतनी यूनिट्स या इतने अमाउंट का रिडम्पशन देते रहिए। तो इन्वेस्टर को एक पेमेंट कैश फ्लो भी आता रहेगा और उसकी इन्वेस्टमेंट ग्रो भी करती रहेगी।
सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, इस केस में ये होता है कि जो आपकी दो इन्वेस्टमेंट पड़ी है, एक लेट से एक डेट में पड़ी है, डेट म्यूचुअल फंड में, और आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, तो आप उस म्यूचुअल फंड हाउस को आप ये बोल सकते हैं, इन्वेस्टर ये बोल सकता है कि जो सिस्टम है, मेरी डेट इन्वेस्टमेंट पड़ी है, उसमें से आप हर महीने या इस तारीख में आप ये इन्वेस्टमेंट को रिडीम करिए और मेरे इस इक्विटी स्कीम में इसे मूव कर दीजिए, स्विच कर दीजिए। तो इसमें ये होता है कि आपको बार बार आपको अपने बैंक अकाउंट में आइडल फंड्स नहीं रखने हैं, और आपकी जो डेट इन्वेस्टमेंट है वो भी कंटिन्यूसली ग्रो करती रहेगी। डिविडेंड ट्रांसफर प्लान विच इज नॉट दैट पॉपुलर, इसमें इन्वेस्टर जो होते हैं वो डिविडेंड जो भी अर्न किया होता है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में, एक आपकी इक्विटी स्कीम में, वो आप अपने म्यूचुअल फंड हाउस को बोलते हैं कि जो भी डिविडेंड आया है वो आप इसकी दूसरी स्कीम में आप इसको इन्वेस्ट करते रहिए, बट ये बहुत पॉपुलर नहीं है। नाउ द लास्ट कॉन्सेप्ट अंडर चैप्टर 7, ट्रिगर्स। कई म्यूचुअल फंड हाउसेस ये भी फैसिलिटी देते हैं दैट कि इन्वेस्टर जो है वो ट्रिगर डिफाइन कर दे अपनी एप्लीकेशन में या एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन में कि अगर मार्केट इस लेवल पे आया तो आप रिडीम कर देंगे, या फिर मार्केट इस लेवल पे आया तो आप मेरी फर्दर यूनिट्स परचेज कर देंगे इस स्कीम में, जिससे इन्वेस्टर को ये ध्यान नहीं रखना पड़ता कि उसको मतलब उसको ये नहीं देखना पड़ता कि उसकी ये अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। ये सारा काम म्यूचुअल फंड हाउस खुद करते हैं बेसिस द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द इन्वेस्टर, सो दैट उसमें आपके इन्वेस्टर को कोई लॉस नहीं होता है। With this, we have completed chapter number 7, and I am open for any questions around it. आपके जो भी questions हैं अभी बता दीजिए, otherwise we'll take up towards the end. Ma'am, so for the systematic plans, like the systematic transactions, we have given a previous, request to the mutual fund houses, but is that like carried out in a computerized manner, or what if they do not do it in that particular manner? What if something goes amiss or something? So the mutual fund house will be responsible for that, right? Correct. So systematic transfer plan, basically they have very strong IT support system, all the mutual fund houses. So they defined the rule behind, I mean, at the back end, that for this investor, these are the dates. जिस डेट में उसका SIP लगेगा, और इस SIP के लिए पैसा कोई ECS या उसके बैंक से डेबिट ना होकर ये पैसा इस सेम म्यूचुअल फंड हाउस की इस स्कीम से वो रिडीम होता रहेगा, बेसिकली वो स्विच कर देते हैं। तो लेट से अगर 1000 रुपए की SIP है जिसमें 1000 रुपए की SIP जाना था, तो 1000 रुपए उस SIP में ऐड हो जाएंगे इक्विटी स्कीम में, और वही 1000 रुपए आपके कम हो जाएंगे उस डेट स्कीम से। दिस इज हाउ इट वर्क्स। एम आई क्लियर? Yes, ma'am. ओके। आई थिंक सोनिका मैम आप थोड़ा सा ब्रेक ले लें, रेस्ट कर लें। श्योर ओके, ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? Yes, ma'am, you're audible. सो बेसिकली गाइस, आज मैंने जो आपसे बात करनी है वो सबसे इम्पोर्टेंटली, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स थोड़े कम हो रहे हैं, कैंडिडेट्स थोड़े कम हो रहे हैं, तो मैं आप लोगों को ये चीज़ बताना चाहूँगी कि NISM बेसिकली जो NISM 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन आप कर रहे हैं, यहाँ पे आपको सोनिका मैम जो भी नॉलेज दे रही हैं, मैं जो भी आपको प्रैक्टिस पेपर करा रही हूँ, ये सिर्फ इसलिए नहीं है बिकॉज कि आपको एक सर्टिफिकेशन मिल जाएगा या आपके CV में सिर्फ एक सर्टिफिकेशन ऐड हो जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट। Basically we are providing you a lot of knowledge, and
somehow अगर फॉर एग्जांपल अगर आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो किस पर्सन को चूज किया जाता है, जिसके पास बहुत सारी डिग्रीज हैं या फिर जिसके पास डिग्री भी है प्लस सर्टिफिकेशन भी है प्लस नॉलेज भी है। तो आपके पास नॉलेज भी होगी, सर्टिफिकेशन भी होगा, तो आपको जॉब में भी बहुत हेल्प होगी। यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको यही सिखाया जा रहा है कि म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करना है, कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है, किस तरीके से डील करनी है, नहीं। आपको यहाँ पे ये चीज़ सिखाई जा रही है कि आपको आगे करियर में म्यूचुअल फंड से रिलेटेड अगर आप जॉब करना चाहते हैं या म्यूचुअल फंड की किसी भी जगह जाना चाहते हैं, जैसे HDFC हो गया, HDB फाइनेंशियल सर्विस हो गया, तो इस तरीके की अगर आप किसी भी कंपनीज में वर्क करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड का सर्टिफिकेशन होना आपके लिए एक एडवांटेज है। तो इस एडवांटेज को आप हो सके तो ग्रैब करें, बिकॉज मैं देख रही हूँ कि मोनिका मैम नहीं, सोनिका मैम कितना अच्छा आपको बता रही है, सारी डिटेल्स बता रहे हैं, बट क्वेश्चन बहुत ही कम अराइज होते हैं। लाइक दीक्षा इज द ओनली वन आई गेस हु इज आस्किंग द क्वेश्चन, other people are not asking, they are not like saying anything. So I want you all to ask the question and know the importance of this mutual fund distribution. Whatever we are doing, you should know about the like what is the benefit of that, why you are doing that. So just like do this for yourself for the additional thing. This is not just a certification course, this is a kind of knowledgeable thing for you. If you want to do job in different sectors of mutual fund, you should have knowledge of this 5A distribution, and after NISM certification you will be first priority for the interviewers. So please make sure कि आप जो भी यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो अच्छे से करें, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी बोलें कि आप इसमें एनरोल हुए, बिकॉज आपको भी पता है कि ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि म्यूचुअल फंड क्या होता है या किस तरीके से हमें म्यूचुअल फंड में डील करनी चाहिए। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। यहाँ पे जो है आपको ये बताया जा रहा है कि अगर आपको जॉब के लिए जाना है और आपके पास NISM का सर्टिफिकेशन होगा तो आपको क्या एडवांटेज होगी उसकी, क्योंकि आपको प्रायोरिटी मिलेगी। डेफिनेटली आपके पास NISM 5 म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का सर्टिफिकेट है, साथ ही साथ आपके पास नॉलेज है, बिकॉज सोनिका मैम है 19 ईयर्स से वो काम कर रहे हैं। शी इज अ CA, एक CA की नॉलेज और इतनी जगह काम करने की नॉलेज, वो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आपको उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए। इफ यू हैड एनी काइंड ऑफ डाउट, एनी क्वेश्चन, you can put message on WhatsApp group or you can send me message if you want to ask something. So just grab the opportunity. It will definitely हेल्प यू इन फ्यूचर। तो अपने फ्रेंड्स को भी बोलें कि वो भी एनरोल करें और आप लोग भी एनरोल करें, और जितना हो सके उतने आप क्वेश्चंस करें। इससे सोनिका मैम भी जो पढ़ा रहे हैं उन्हें भी पता चल जाएगा कि कहाँ पे बच्चों को डाउट आ रहे हैं, ताकि वो आपके डाउट क्लियर करें। बिकॉज अगर आपके पास एक्सपीरियंस लोग हैं और वो आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आपको इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रही है उनके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करने के लिए, तो आपको उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए और क्वेश्चंस करने चाहिए। तो आई थिंक सबको समझ आया होगा। तो प्लीज़ थोड़ा कंसंट्रेट करें, क्वेश्चन रेज करें, कोई डाउट होता है वो करें, प्रैक्टिस पेपर टाइम टू टाइम अटेम्प्ट करें। इट विल डेफिनेटली हेल्प। ओके गाइस, Yes, ma'am. Yes, ma'am. थैंक यू एवरीवन। ओके, now I'll start the practice paper. Okay, my screen is visible to everyone. Yes, ma'am. Okay, so yesterday we left the questions, and today's first question is: a company has earning per share EPS of rupees 5 and price to earning ratio of 30. What will be the market price of the shares of this company? So सबसे पहले तो आप formula लिखें. The formula is price to earning ratio, that is equal to market price divided by earning per share. So according to this formula, what is the answer? Anyone?
Ma'am, could you repeat the formula again, Yeah, please? sure. Yeah, sure. Market price divided by earning per share. Ma'am, 150. Okay, very nice. Any other person? Okay, so correct answer is yes, 150. According to the formula, the answer is 150. Okay, now come to another question. What would be the most appropriate benchmark for the short-term debt scheme? Anyone? 10-year dated Go security, 3-year dated Go security, 1-year treasury bill. D is no such benchmark exists. Anyone? Guys, please participate. It will definitely help you in clearing the exam. Okay, the answer is 1-year treasury bill because the explanation is here. Appropriate benchmark, equity scheme minus Sensex or Nifty, long-term debt minus 10-year dated Go security. And short-term debt is for 1-year treasury bill. So the question is short-term debt scheme and that is 1-year treasury bill. Then monthly income plan. Firstly, monthly income plan is a type of mutual fund strategy that invests primarily in debt and equity security. So MIP has no exposure to equity. True or false? Ma'am, false. Okay. So the correct answer is false because MIP have an element of equity in its portfolio to give a boost to the fund's return. This can typically range from 5% to 30%. And this is very simple question, I guess. Who issues the certificate of deposit? Anyone? Sorry. Come again, please. Ma'am, D. D. Okay, why? Ma'am, Yes. government. Government. Okay. Bank. 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 Okay. Okay. Very nice. So the correct answer is bank. Yes. Certificate of deposit are issued by bank for 7 days to 1 year or by any other financial institution for 1 to 3 years. The correct answer is bank. Very nice. Next is which of the below is are fundamental attributes of a scheme. So basically the fundamental attributes are the structure or we can say investment pattern. So according to you, what is the answer? The type of scheme, investment objective of the scheme, term of issue, all of the above. The meaning of All of fundamental. Sorry. Ma'am, all of the above D. Okay. Any other person? Okay. So the answer is all of the above. Why so? The offer document is the most important source of information on the core aspects of the scheme called its fundamental attributes. The fundamental attributes of the scheme include the type of scheme, that is open-ended, close-ended, equity, balanced, etc. Then investment objective, that is growth, income, etc. Term of the issue, that is listing, repurchase or redemption. Then now come to next question. The first step in developing a model portfolio is. So model portfolio is a collection of assets owned by the underlying investor and managed by professional investment managers. That is the meaning of model portfolio.
So first, deciding the size of portfolio, selection of the mutual fund scheme, setting of goals, none of the above. Shall I repeat the meaning of model portfolio? Ma'am, will you please repeat what is a model portfolio? That is the collection of assets owned by the underlying investor and managed by the professional investment managers. Am I clear now? Ma'am, selection of mutual fund schemes. Okay. Firstly, setting of goals. Why? Because they need to like professionally invest it. So firstly, what will they do? They will set the goals, and after that they will like select the scheme, decide the portfolio size. So first is setting of goals. There would be a step given. First is enable your investor identify his investment need and goals. Firstly, we have to like know about their need and goals. Then understand the various financial product like their risk, their return, how much liquidity and maturity profile. Then combine the feature of financial product with the investor like financial need and determine appropriate mix of investment, technically referred to as asset allocation. Then suggest suitable mutual fund scheme within the asset choice. Okay, then come to next. If the ARN code is not mentioned and choice of plan is not indicated in the application form, then the application will be ARN is a registration number. So if nothing is mentioned on the application form, then what is the answer? The processed as a direct plan application, rejected, processed as regular plan application, treated as incomplete application and will be returned to the investor for completion. Ma'am, proceeded as a direct plan application. Okay. Any other person? All right. So answer is direct plan application. Very good. Why so? Because if the ARN code is not mentioned and the choice of plan is not indicated, then the application will be processed as direct plan application. Very nice. Again, a very simple question. Which of these assets has the highest risk of loss through theft? Very simple. We cannot like theft your real estate. We cannot theft mutual fund. We cannot even theft someone's share and debenture. There's only thing we can like theft, and that is, guys. Gold. Yes, exactly. So gold is basically like you have listened a lot of news about the gold that we can easily theft the gold, but we cannot like theft these things. Then next is, which of the following is used to measure risk adjusted performance? Sharpe ratio, standard deviation, R squared, beta coefficient. I guess ma'am had told you about all of them. Shall I repeat? Sharpe ratio is that is a measure of risk adjusted return of financial portfolio. Then come to standard deviation, as you know, a quantity expressing by how much member of group differ from the mean value for the group. Then come to R squared. It is a statistical measure that represents the proportion of the variance for a dependent variable. Then beta coefficient can measure the individual stock compared to the systematic risk of the entire market. So, which have more risk, do you think? Risk adjusted Ma'am, performance. Top. Okay.
So the correct answer is Sharpe ratio. Why? Some important measure of risk adjusted return as Sharpe is tenure ratio and alpha. Higher the Sharpe, better the scheme is to consider to be. Next question. With the respect to model portfolio for senior citizen, it will not have any exposure to equity. True or false? I told you about model portfolio. I can repeat that. That's a collection of assets owned by the underlying investor and managed by professional investment managers. So, with respect to model portfolio for senior citizen, it will not have any exposure to equity. True or false? Ma'am, false. Okay. So the correct answer is false. Yes, because as per model portfolio for couple in their 70s with no immediate family support, 15% diversified equity index, 10% gold ETF, 30% diversified debt fund, 30% MIP, 15% liquid scheme. This shows some exposure can be taken in equities. Okay. So, Sonika ma'am, now you can take the class. Sure. Thank you, Ranjana. Thank you, ma'am. Now we'll start with chapter 8, which is return, risk and performance of funds. So जो क्वेश्चन आपसे अभी पूछे गए हैं उसमें काफ़ी आपके क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वाले चैप्टर से मिल जाएगा. So you can always refer to this chapter and then practice those questions again. So then you will able to आप लोगों को फिर पता चलेगा कि yes मतलब it's quite easy and आप कर सकते हैं. तो what are the drivers of returns and risk in a equity scheme? So basically हम इस चैप्टर में ये इक्विटी और डेट के रिस्क, रिटर्न और परफॉर्मेंस की बात करने वाले हैं. So let's first start with the equity schemes. Equity schemes basically they are considered to be the best asset class over a longer period of time. जितना ज़्यादा आप उस इन्वेस्टमेंट को रखेंगे उतना ही वो आपको अच्छी रिटर्न देगी, प्रोवाइडेड आप इन्वेस्टर कीप ऑन reviewing the investment or keep on seeing the investment whether it is in the correct hands. And it protects, हम लोगों ने पहले भी बात करी है, equity investment, it protects the principal value from depreciation against the inflation. तो basically ये आपकी investment को inflation से जो investment value, real value of money जो कम होती है उससे आपको equity investment बचाती है, क्योंकि equity as a class represents the growth investment. Now there are two types और two approaches जिससे हम अपनी investment को या अपनी equity schemes को analyze कर सकते हैं. One is the fundamental analysis, another is the technical. Fundamental analysis में आपका कंपनी जिस भी आप स्कीम को देख रहे हैं उसमें जो पोर्टफोलियो है, उसमें जो कंपनीज हैं वो मेजरली दोज आर लिस्टेड कंपनीज. वो ज़्यादातर 90%, 99% वो लिस्टेड कंपनीज होती हैं. तो लिस्टेड कंपनीज के फिनेंशियल्स पब्लिक डोमेन में इजीली अवेलेबल होते हैं. तो आप उनके फिनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ सकते हैं, उसमें जो उनकी बोर्ड रिपोर्ट होती है वो पढ़ सकते हैं. विजन आपको पता चलेगा प्रमोटर का क्या विजन है, और आप उनका जो कॉम्पिटिटिव एनालिसिस होता है कि वेयर दे आर वर्सेस देयर पीयर्स और देयर कॉम्पिटिटर्स, वो सारा उस फिनेंशियल्स में होता है.
और उसमें आप एक जो आपके पास अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड हाउस का या किसी भी एनालिस्ट का भी आप उसका रिव्यू पढ़ सकते हैं फॉर दो स्कीम्स एंड फॉर दो स्टॉक्स, अंडरलाइंग स्टॉक्स। उसमें वो 2-3 रेशो कंप्यूट करते हैं। एक होता है अर्निंग पर शेयर, दूसरा होता है प्राइस टू अर्निंग, पी रेशो, एंड बुक वैल्यू पर शेयर। अर्निंग पर शेयर मीन्स जो भी हमारे जितने भी उस कंपनी के शेयर्स हैं और जो उस कंपनी ने उस साल में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिया है, तो आपको पीएनएल में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ रहा होगा, उसको आप नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ईपीएस आ जाएगा। ईपीएस अगर हाई है तो बहुत अच्छा है, बिकॉज विच शोज कि आपका कंपनी ने बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न किया है। So it is always better to go for high EPS companies. एक होता है another parameter is price to earning ratio, which is basically जो भी market price चल रहा है divided by earning price, earnings per share, which is EPS. तो जब भी कोई इन्वेस्टर किसी कंपनी का शेयर बाय करता है तो उसमें जो फंडामेंटल क्राइटेरिया होता है वो ये होता है कि P ratio, what is the P ratio? Basically, P ratio is कि जितना भी उस शेयर का क्या पोटेंशियल है, इन सिंपल वर्ड्स एंड इन हिंदी, what is the potential of that share to grow in the future? So generally जो मार्केट में या जो शेयर्स ट्रेड होते हैं या जो मार्केट होता है, BSE हो गया या आपका निफ्टी हो गया, वो आपके फॉरवर्ड पी रेशियो से चलता है। तो लेट्स से मार्केट माइट एट प्रेजेंट बी एट लेट्स से 30 टाइम्स फॉरवर्ड ईपीएस। दिस इज द वैल्यूएशन ऑफ द मार्केट। तो नेक्स्ट ईयर का क्या प्रोजेक्शन है, लेट्स से 35 और 40, विच मीन्स कि ये शेयर अभी जिस करेंट मार्केट प्राइस पे है उससे ये शेयर प्राइस बढ़ेगा। So that's why PE ratio is very important. Then book value per share. Book value is basically whatever is the net worth divided by the number of equity shares. So what is net worth? Net worth is your share capital plus the reserves and surpluses. So there is a definition of net worth as per the Companies Act, which says that reserves and surpluses plus equity less any miscellaneous expenditure or any deferred expenditure. So basis that net worth, the book value per share can be arrived at. Then price to book value, market price per share, जो भी उस दिन का market price रहा है उस शेयर का, divided by the book value per share. तो उससे आपको price to book value आती है। तो अगर मार्केट प्राइस ज़्यादा है, प्राइस टू बुक वैल्यू इज़ हाई, विच मीन्स कि आपका शेयर महंगा है, जो आपके शेयर्स है वो महंगा है वर्सेस जो उसकी एक्चुअल वर्थ है। तो जनरली ये वाला पैरामीटर इज़ नॉट यूज्ड कॉमनली बिकॉज दिस इज़ एन हिस्टोरिकल मेजर, या एक ये अकाउंटिंग नंबर है, एक अकाउंटिंग फिगर है विच कैन बी ड्रेस्ड अप ऑल्सो। ये नंबर मतलब ड्रेस अप भी किया जा सकता है या आई वुड से मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो द प्राइम टू फैक्टर्स टू लुक एट इज EPS एज वेल एज द P रेशियो। देन डिविडेंड यील्ड, तो हमने पहले पढ़ा था कि हमारे जो शेयर्स होते हैं वो दो तरीके से परफॉर्म करते हैं। एक तो वैल्यू शेयर्स होते हैं, वैल्यू शेयर्स होते हैं और दूसरे डिविडेंड यील्डिंग होते हैं। So there are good companies in the market whose market price do not fluctuate very frequently. They are generally already they are into their growth phase and they are the matured companies. तो उनसे हमें जो होता है डिविडेंड मिलता है, लाइक ऑल द FMCG कंपनीज या ऑल द IT सेक्टर कंपनीज। अगर आप उनके
शेयर प्राइस देखेंगे तो वो ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होते हैं, बट उनसे डिविडेंड अच्छा आता है बिकॉज दे आर हाई प्रॉफिट जनरेटिंग कंपनीज, और वो प्रॉफिट डिविडेंड्स के फॉर्म में वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. तो डिविडेंड यील्ड इज बेसिकली डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय द मार्केट प्राइस पर शेयर. तो जितना हाई होगा डिविडेंड यील्ड, which means this is a very good stock to purchase or to invest in. Technical analysis basically काफ़ी as the name suggests is technical only. उसमें bars, charts, historical data, trend analysis, बहुत scientific methods से पूरा arrive किया जाता है और whether to invest or take a call in a particular share or not. पर जनरली इतना डेटा एक नॉर्मल इन्वेस्टर के पास नहीं होता है. सो दैट्स दिस टेक्निकल एनालिसिस जो होते हैं ये म्यूचुअल फंड हाउसेस खुद करते हैं या दे टेक द सर्विसेज ऑफ द स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड कंसल्टेंट्स. अभी हम लोगों ने वही बात करी इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स इक्विटी के, ग्रोथ एंड वैल्यू. ग्रोथ बेसिकली जो भी जैसे स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं या मिड कैप्स होती हैं वो न्यूली लिस्टेड हुई और उनके पास देयर इज अ सम एंटरप्राइज आइडिया which is liked by the investor community or which is very much in demand. Those companies tend to grow at very high pace. Then they become the growth companies, and the investment in those companies becomes the growth investment style. Similarly, value investment style होता है जिसमें आप जो भी आपका कई कंपनीज होती हैं जिनका market price or share price is less than what their financials are. Somehow these companies play subtle and they just do not मतलब बहुत ज़्यादा they don't boast themselves. और जो चुपचाप शांति से जो काम करते हैं, जो कंपनीज अपना फोकस होके रहती हैं और जिनकी कई बार जिनका स्टॉक प्राइस कम होता है बट उनकी वैल्यू बहुत हाई होती है, तो म्यूचुअल फंड हाउसेज और द ट्रेडर्स और द फंड मैनेजर आइडेंटिफाइज दोज कंपनीज एंड put their money into those companies so that whenever there is a favorable market cycle, then these share prices are going to increase tremendously high. So these are the two styles of equity investment. Portfolio building approach, top down and bottom up. टॉप डाउन अप्रोच में पोर्टफोलियो मैनेजर पूरा इकोनॉमिक फैक्टर्स को स्टडी करते हैं. उस इकोनॉमी फैक्टर्स हो गया, जैसे मार्केट कहाँ जा रहा है, जीडीपी कितना है या करंट अकाउंट डेफिसिट कितना है, एक्सपोर्ट्स कितने हो रहे हैं, इस सेक्टर इज इट अ सनराइज सेक्टर और इट्स अ नेगेटिव ग्रोथ सेक्टर, व्हाट इज द एनुअल टर्नओवर, व्हाट आर द एक्सपोर्ट मार्केट्स. ये सारे फैक्टर देखे जाते हैं और फिर वो इंडस्ट्रीज या कंपनीज सेलेक्ट करते हैं फॉर द इन्वेस्टमेंट. बॉटम अप अप्रोच वो होता है जिसमें कंपनीज को पहले आइडेंटिफाई किया जाता है कि हाँ ये कंपनीज तो बहुत अवेलेबल है मार्केट में, और फिर उनको स्टडी किया जाता है फ्रॉम द प्रेजेंट इकोनॉमिक सिनेरियो एज वेल एज व्हाट कुड बी द फ्यूचर इकोनॉमिक सिनेरियो, or then the selection is being made. Equity हम लोगों ने देख लिया है. अब now coming to debt. Debt investment as the name suggests, इसमें हमें कोई डिविडेंड नहीं मिलता है. इसमें हम इन्वेस्टर डेट फंड्स या डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं एंड देन दे गेट अ रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ द इंटरेस्ट और फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, एंड ऑन द मेच्योरिटी डेट दे गेट द रीपेमेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट अमाउंट. सो देयर इज अ प्री डिफाइंड टेनोर. पहले से ही डिफाइंड टेनोर होता है और लेट्स से 5 years, और उसके बाद वो सिक्योरिटीज मैच्योर हो जाती हैं और पैसा रिडीम होके फंड हाउस के पास आ जाता है.
जो भी debt securities which get matured within a year, they are called the money market securities. So 1 साल से कम में जो securities आपके मैच्योर हो रहे हैं वो मनी मार्केट सिक्योरिटीज होते हैं, और जो 1 साल से अबव होते हैं उन्हें बॉन्ड बोला जाता है, बॉन्ड्स. So debt securities can be issued by central government, state government, banks, financial institutions, public sector undertakings, private companies, municipalities. तो जितने भी आपके मार्केट में बॉन्ड्स हैं वो सरकार भी बोरो कर सकती है इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स, या प्राइवेट कंपनीज भी कर सकती हैं, या आपके PSU भी कर सकते हैं. तो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज करते हैं या जो सिक्योरिटीज इशू करते हैं, दे आर कॉल्ड गिल्ट, GSEC. जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं वो RBI इशू करता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, which has a maturity of around 1 year. और जो गवर्नमेंट जो गिल्ट होते हैं that has maturity of more than 1 year and can run up to 30 years or even 40 to 50 years. बैंक CD जो होते हैं, CD बैंक इशू करते हैं, उनका मेच्योरिटी होता है अप टू फ्रॉम 7 days to up to 1 year. या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस करते हैं. कमर्शियल पेपर्स कंपनीज, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज इशू करती हैं, लिस्टेड अनलिस्टेड. और बॉन्ड्स और डिबेंचर्स जैसे मैंने बताया कि दे आर जनरली इशूड फॉर टेनोर्स बियॉन्ड अ ईयर. Amongst all these securities, gilts are viewed as the safest investment because they are the sovereign papers. So you cannot expect the government to default on the bond repayments or interest repayments. तो ये काफ़ी safest investment है. आप ये नहीं सोच सकते कि सरकार भी आपका पैसा रोक लेगी या वो डिफॉल्ट कर देगी. तो गिल्ट्स हो गए, ट्रेजरी बिल्स हो गए, बैंक CDs हो गए, दे आर द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट्स. व्हाट इज अ क्रेडिट स्प्रेड? क्रेडिट स्प्रेड इज बेसिकली जो भी डिफरेंस होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का यील्ड का. So let's say government gilt 10-year gilt at present is at 6.5, और वही 10-year बॉन्ड अगर एक कंपनी इशू करती है लेट्स से 9%, तो क्रेडिट स्प्रेड आपका आ गया 9 minus 6.5 which is 2.5%. तो जो भी रिटर्न डेट फंड्स में जनरेट होती है दैट इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट इन द इंटरेस्ट रेट्स एंड द क्रेडिट स्प्रेड्स. इंटरेस्ट रेट्स वी ऑल नो दैट कि जो भी इशूअर होता है बॉन्ड का या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का, वो एक परसेंटेज डिफाइन करता है कि आपको 8% या 9% पे इंटरेस्ट मिलेगा लेट्स से 6 month में या 1 साल में. This is called the interest rate defined or coupon defined on a particular debt security. क्रेडिट स्प्रेड्स वो होते हैं जैसे हमने अभी बताया कि डिफरेंस बिटवीन द sovereign interest rate of a sovereign paper and the bonds issued by a private limited company or corporate bonds. So the higher the credit spread, which means that the market is moving in a high interest rate scenario, which means कि fundraising is difficult या पैसा महंगा है मार्केट में, तभी कंपनीज आपके 3 से 4% के क्रेडिट स्प्रेड पे बॉन्ड रेज कर रहे हैं या बोरिंग्स कर रहे हैं, या मार्केट में रिस्क काफ़ी है तभी इन्वेस्टर ज़्यादा रिटर्न चाह रहा है बिकॉज रिस्क इज़ हाई. इफ क्रेडिट स्प्रेड्स आर लो विच मीन्स कि ये पेपर काफ़ी सेफ है. हम इसे बेसिकली किसी भी सिक्योरिटी को हम पेपर वर्ड यूज़ करते हैं कॉमन टर्म्स में कि ये जो बॉन्ड है ये काफ़ी सेफ है बिकॉज इस पे जो हमें रिटर्न मिल रही है
एज कंपेयर टू कि जो हमें सॉवरेन पेपर पे मिल रही है वो उसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, तो ये सेफ है। अब इक्विटी शेयर्स की जो इक्विटी स्कीम्स की बेंचमार्किंग होती है वो सेंसेक्स होता है, S&P CNX निफ्टी होता है, बेसिकली निफ्टी 50 या BSE 100 होता है। और डेट स्कीम्स के लिए NSE माइबॉर होता है, मुंबई इंटरबैंक ओवरनाइट रेट, या क्रिसिल लिक्विफेक्स फॉर लिक्विड फंड्स, या फिर आपका गिल्ड स्कीम्स के लिए आपका सीबैक्स होता है, माईबैक्स होता है, लीबैक्स होता है। इस तरह हम उसकी बेंचमार्किंग करते हैं। गोल्ड हम लोगों ने डिस्कस काफ़ी किया हुआ है, इट्स अ इंटरनेशनल एसेट और इसका प्राइस इज द मूवमेंट जो होता है गोल्ड का, दैट इज ड्रिवन बाय डिमांड एंड सप्लाई। कितनी डिमांड है इसकी, क्या सप्लाई है इसका, प्लस द फॉरेन करेंसी रेट्स, बिकॉज हमारा जो गोल्ड होता है वो दैट इज ट्रेडेड इन फॉरेन करेंसी। तो अगर इंडिया में उसको कन्वर्ट करना होता है तो वो फॉरेन करेंसी एक्सचेंज डिफरेंसेस आ जाते हैं। Now what are the measures of returns? So there are 3-4 types of returns. हम लोगों ने कल भी एक briefly हमने बताया था point to point या annualized या CAGR. So एक होता है simple return होता है, basically उसमें हमारा जो भी invested amount था that is subtracted from the let's say the present market value divided by the initial value, that comes your simple return. So let's say 10 रुपए पे खरीदा था, 15 रुपए, या मैं इसी एग्जाम्पल से चलती हूँ, 12 रुपए पे खरीदा था और वो 15 रुपए हो गया, तो अगर हमें सिंपल रिटर्न निकालनी है तो 15 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 100 विच कम्स टू 25%. सो उस इन्वेस्टमेंट में 25% का सिंपल एब्सोल्यूट रिटर्न आया है. ये सिंपल रिटर्न आपकी एब्सोल्यूट रिटर्न होती है. दिस इज नॉट दी एनुअलाइज रिटर्न. अब इसी रिटर्न को अगर हम लेट्स से अगर हम ये पीरियड डिफाइन कर देते हैं कि ये 12 रुपए से बढ़कर ये वैल्यू 15 रुपए लेट्स से 2 साल में हुई है तो हमारी एनुअलाइज रिटर्न आ जाएगी 25% डिवाइडेड बाई 2 विच इज 12.5%. और यही अगर 4 ईयर या 5 ईयर में आई है तो वो 5% हो जाएगी. So basically this is what it has been written. Simple return multiply by 12 divided by period of simple returns. और 24 महीने है तो 24 महीने आ जाएगा, 36 महीने है तो 36 महीने आ जाएगा. Compounded return is basically CAGR. तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है. Let me go through that example. अगर let's say 2 investment options are available, or let me just wait a moment. I'll give you, let me share one question with you, how to, or rather let's make it, let me first explain how this is compounded return is being calculated, and then we'll do one example to calculate it. So basically, yes. So there is a initial principal amount of let's say 10,000 rupees. Interest rate was let's say 10%. And then the closing balance will become simple interest for 1 year will become 11,000. फिर 11,000 को फिर हमने 10% से लगाया, 1,100 हो गया, और फिर मेरा क्लोजिंग वैल्यू एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर विल बिकम 12,100. कैसे आया? 11,000 प्लस 1,100. इसी 12,100 को फिर मैंने 10% से लगाया विच कम्स टू 12,110, और 1210 को फिर मैंने 12,100 पे ऐड किया
which comes to 13,310. ये होता है कंपाउंडिंग इफेक्ट कि आपके प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट आपका बढ़ता रहता है रादर देन कि आपका जो लेटर वैल्यू माइनस द ओरिजिनल वैल्यू डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल वैल्यू. नो, it's basically once you have the interest added on the principal at end of a particular period, कभी भी उस पीरियड के एंड पे जब आप प्रिंसिपल में उस इंटरेस्ट को ऐड करते हैं तो उस वैल्यू पे फिर आपका इंटरेस्ट दोबारा से कैलकुलेट होता है. इस तरह करते करते हमारी वैल्यू आ गई 13,310. अब अगर हमें इस पे CAGR निकालनी है तो 13,310 डिवाइडेड बाय इनिशियल 10,000, फिर हम इसको पीरियड से वो करेंगे, वैल्यू करेंगे टू द वैल्यू लेट्स से 3 years and then we can find the CAGR. मैं आपको एक illustration दे रही हूँ. Maybe then you can try. Let's try if you can do it. Is this visible? The question. Okay. So the question is, the Mrs. Reena purchases mutual fund units at NAV 13 rupees. After 500 days, she redeems it at NAV 15.70. What is the compounded rate of return? We have just studied it. हमने अभी पढ़ा है, हमें फॉर्मूला भी पता है. तो अगर आप लोग प्लीज टेक 1 minute टाइम एंड देन जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज द rate of return, CAGR. I request everyone to participate. Anyone, any difficulties, कोई दिक्कत आ रही है या कर पा रहे हैं आप लोग, प्लीज बोलिए, वरना पता नहीं चल रहा है कि मतलब आप लोगों को कहाँ पे दिक्कत आ रही है. तो ठीक है, लेट्स डू इट, शो द आंसर. करेक्ट आंसर इज 14.7%. हाउ वी डिड दैट? हमारा जो एंड प्राइस है डिवाइडेड बाय बिगनिंग प्राइस जो हमने बोला था, हमने टू द पावर हमने टाइम पीरियड किया -1. दिस इज द फॉर्मूला. So end price was 15.7, begin price was 13 rupees, and period is 500 divided by 365 days, which comes to 1.369. And if we put this in Excel, and then we'll get this much return, which is 14.7%. Maybe you can try, we can share this example with you, and then you can try by choosing different numbers. Let's continue with this. Thank you, Sonika ma'am. Thank you so much. Okay, I'll just take 1 more minute to complete. Yeah. Sure, ma'am. So there are certain inherent risk in a scheme
So we would like to understand what are those kind of risk. One is the portfolio risk, that whatever you are investing in the mutual fund scheme, let's say debt, equity, gold, or real estate, what are the inherent risk for those particular products? Second is the portfolio liquidity, whether the portfolio invested is liquid or illiquid. So one has to be careful about the liquidity measure as well, because if the sudden redemptions comes in, then it will be very difficult to sell off or liquidate the portfolio. So it's always better to see the liquidity of the portfolio as well. Liquidity means कि वो मार्केट में कितना ट्रेडेबल है, उसको खरीदार होने चाहिए मार्केट में, आपके जो भी आप सिक्योरिटीज इन्वेस्ट कर रहे हैं. तो खरीदार कब होंगे? जब उन्हें हाई रेटिंग दिखेगी उस पर्टिकुलर पेपर की, या फिर उसमें उन्हें लगेगा कि हाँ ये सिक्योरिटी आगे चल के लिक्विडेट की जा सकती है. एंड यूज ऑफ डेरिवेटिव्स, कई म्यूचुअल फंड्स just to hedge against the capital protection or against the risk of principal, मतलब प्रिंसिपल को कैपिटल प्रोटेक्शन ऑप्शन देने के लिए म्यूचुअल फंड हाउसेस कई बार डेरिवेटिव ले लेते हैं. हमने पहले भी बताया है, जैसे ऑप्शंस ले लेते हैं, तो उसमें ये ध्यान देना होता है कि वो these are high risk, there is a high risk involved, because इनके अगेंस्ट हमें ना तो बोरिंग मिल सकती है और ना ये ट्रेडेबल होते हैं, तो दे आर ऑलमोस्ट इलिक्विड. देन यूनिट होल्डर चर्निंग, बेसिकली ये वही चीज़ है कि जो रिडम्पशन, अगर सडन रिडम्पशन आता है कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से या बायर से या HNI से, तो म्यूचुअल फंड हाउस को उसके रिडम्पशन को ऑनर करने के लिए अपनी सिक्योरिटीज बेचनी पड़ती हैं. उसमें ये होना चाहिए कि देयर शुड नॉट बी अ कॉन्सेंट्रेशन रिस्क. इसके लिए देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स डिफाइन कि जो भी इन्वेस्टर होने चाहिए, ऐसा ना हो कि एक पूरी स्कीम में 2 या 4 इन्वेस्टर ही है. नो, SEBI has provided these guidelines that there should be at least 20 investor in a particular scheme. कम से कम 20 इन्वेस्टर होने चाहिए एक स्कीम में, और एक इन्वेस्टर के पास 25% से ज़्यादा पूरे स्कीम की नेट एसेट वैल्यू से 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, विच मीन्स कि एक इन्वेस्टर आपका 25% से ज़्यादा होल्ड नहीं करेगा द AUM ऑफ दैट पर्टिकुलर स्कीम. अब ये तो आपके बेसिकली मैक्रो रिस्क हो गए. SLR हम इसे बोलते हैं, सेफ्टी, लिक्विडिटी एंड रिटर्न. तो सेफ्टी में आपका जैसे पोर्टफोलियो रिस्क, लिक्विडिटी, पोर्टफोलियो लिक्विडिटी, यूज ऑफ डेरिवेटिव्स या सडन रिडम्पशन प्रेशर्स. अब हम आ जाते हैं म्यूचुअल फंड स्कीम्स में कौन कौन से रिस्क जो होते हैं. वो हमने पढ़ा, नेचर ऑफ पोर्टफोलियो, इट्स लिक्विडिटी, आउटसाइड लाइबिलिटीज एंड कंपोजिशन ऑफ यूनिट होल्डर्स, वही कि 20 से कम है या 25% से ज़्यादा होल्ड कर रहे हैं. देयर आर सर्टेन रेशियोज विच आर डिफाइंड, बेसिस विच वन कैन प्राइमा फेसी, ऊपर से हमें इतना इन डेप्थ नॉलेज नहीं होता है जो भी इन्वेस्टर होता है, या हम इतना टाइम नहीं होता है कि हम लोग ये पूरा कैलकुलेट करें. यहाँ के एक स्पेशलाइज लोग हैं जो ये कैलकुलेट कर सकते हैं. So we just go by what they are stating, and basis that we go for choosing those schemes. Like there are certain parameters. One is modified duration. हमने इस पे पहले भी बात करी है. Modified duration is something change in the value of a investment with respect to the change in the interest rate. So इसका मतलब ये हुआ कि अगर interest rate change हो रहा है, तो अगर इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी की वैल्यू में चेंज आ रहा है, तो दैट इज द मॉडिफाइड ड्यूरेशन. सो हायर द मॉडिफाइड ड्यूरेशन, द मोर रिस्कियर इट इज द इन्वेस्टमेंट इज. तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन कम होगा तो ज़्यादा बेटर है.
Then there is a ratio of beta, standard deviation, variance. So beta is basically fluctuations, measures the fluctuations in the periodic returns in a scheme. So we'll just say that जिस company या जिस scheme या जिस share का beta is more than 1, which that scheme or that share or that company is risky than the market. So beta less than 1 is indicative that the company or the scheme is less riskier than the market. So market का जो beta है that is has been defined as 1. 1 से ज़्यादा है किसी स्कीम में तो रिस्की है. सिंपल थंब रूल याद रखिए, 1 से कम है तो बेटर है. Same is the standard deviation. Standard deviation is a measure of total risk in the investment. जितना ज़्यादा standard deviation high होगा उतना ही volatility रहेगा रिटर्न्स में, उतना ही वो risky investment है. तो high the standard deviation, high is the risk. Variance is basically जो भी periodic returns होते हैं time to time in the scheme वर्सेस जो भी उसका एवरेज रिटर्न आता है. लेट्स से अगर हम उसके पॉइंट टू पॉइंट 2 साल का रिटर्न देख रहे हैं और उसी रिटर्न का हम एवरेज कर रहे हैं तो उसमें कोई वेरिएंस है तो वो उससे हमें पता चलता है कि वेदर द स्कीम, उस पर्टिकुलर स्कीम ने कैसा परफॉर्म किया है, वेदर द परफॉर्मेंस इज good in the first part of the period or later part or during mid of the period. Variance से हमें ये पता चलता है. Then there are certain quantitative measures of fund manager like absolute and relative returns, Sharpe ratio, tenor and alpha. So performance absolute and relative ratio में जिसका भी I'll just read it from the text. हम ज़्यादातर हमारा फोकस रहता है कि एब्सोल्यूट रिटर्न कितनी अर्न हुई है in that particular scheme versus the benchmark or the peer group. So let's say absolute return is 10% और वही रिटर्न अगर हम कंपेयर करते हैं कि जो सेम शेयर या सेम स्कीम ने अर्न करी है ऑफ डिफरेंट म्यूचुअल फंड हाउस, लेट्स से 12%, that is the relative return. So absolute return is the return for that particular scheme of a mutual fund house and relative return is something कि जो बाकी यूनिवर्स है carrying the same portfolio, same scheme, same modified duration, जो भी आपका competitive group है उसने क्या रिटर्न ली है तो that is called the relative return. So अगर absolute return is greater than relative return, which means that fund manager has outperformed it, or if it is vice versa, then it has underperformed. Then Sharpe ratio is basically let me just read. So Sharpe ratio is basically uses standard deviation as a measure of risk. So if it actually tells about how much risk has been taken by the fund manager in a particular scheme. So higher the Sharpe ratio, higher the risk. Tenor ratio, these ratios again it uses beta. So it so let's say higher the tenor ratio, the better is the scheme, which means that the beta of that particular scheme is less than 1. Alpha is something which, let's say the scheme has promised that okay, it will give a return of let's say 6%. However, because of churning of portfolio or taking opportunities, fund manager is able to deliver a return of let's say 8% or 10%, which means there is the scheme has generated alpha versus the market index. So market may be let's say given a return of 6%,
or the scheme itself has conservatively told the investors that 6% का return आएगा, और but after a year जब वो रिटर्न आता है, जब वो रिटर्न पब्लिश होता है, तो दैट कम्स टू 8 to 10% वर्सेस मार्केट में वही 6% या 7% का रिटर्न आया है. Alpha of that particular scheme is 2 to 3%, which means कि because of the fund manager's performance या capability या उसने जो call लिए, scheme has given a very good return to the investor. So with this, we have completed chapters 7 and 8. The forum is open for the questions and answers. I really request, जैसे रंजना मैम ने भी बोला था कि जब तक आप इस सब्जेक्ट को आप पढ़ाई मत समझिए, ये सब्जेक्ट आपको प्रैक्टिकल नॉलेज तो देता ही है, प्लस आप खुद अपना कहीं ना कहीं आप इसमें एंगेज हो सकते हैं, एम्प्लॉय हो सकते हैं, मतलब फुल टाइम भी हो सकते हैं, पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, प्लस आप आपके खुद के पर्सनल फिनेंसेस भी अच्छे से मैनेज कर सकते हैं. तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और आप लोग जिस पढ़ाई को कर रहे हैं ये हर कोई नहीं समझ सकता है, और ये बहुत अच्छा है जो आपने टाइम निकाला है. और आई रियली रिक्वेस्ट, या वी ऑल रियली रिक्वेस्ट कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा एंगेजिंग बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछिए, जो भी आपके डाउट है. न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हैं, आपके बुक्स के करिकुलम में ये सब है, तो आप उसको कोरिलेट करने की कोशिश कीजिए ताकि आपके क्वेश्चंस आएँ और उस क्वेश्चंस का हम लोग भी मतलब जवाब दें तो आपको अच्छा लगे, आपको ज़्यादा बेटर समझ में आए. तो प्लीज़ बताइए कोई क्वेश्चंस हैं तो विल टेक अप. थैंक यू सो मच सोनिका मैम. गाइस, जैसे कि मैम ने भी बोला, मैंने भी आपको बोला कि आप इस सेशन को और इंटरेक्टिव बना सकते हैं. आपके अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन टेल अस, तो क्लास अच्छी लगेगी और आप भी इंजॉय करेंगे. बिकॉज अगर सिर्फ हम पढ़ा रहे हैं और आप नहीं कुछ पूछ रहे हैं तो आपको भी पता है कि इतना इंटरेक्टिव सेशन नहीं हो पाएगा. तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे तो उतना ही ज़्यादा सेशन आपको भी अच्छा लगेगा. एंड NISM के बेनिफिट आपको मैं बता चुकी हूँ कि आपके करियर के लिए बहुत बेनिफिशियल है. सो प्लीज़ आप जितने क्वेश्चन हो सके उतने क्वेश्चन को रेज करें और म्यूट पे ना रहें, पूछें क्वेश्चंस, तो आपको भी अच्छा लगेगा एंड टीचर्स को भी अच्छा लगेगा. लाइक सोनिका मैम को भी अच्छा लगेगा, जैसे कि जो भी पढ़ा रहे हैं आपको समझ आ रहा है, इससे उन्हें भी पता चलेगा दैट यू आर लिसनिंग एवरीथिंग. तो आप म्यूट पे ना रहें, आप प्लीज क्वेश्चंस भी करें और सेशन को थोड़ा और इंटरेक्टिव बनाएं. ठीक है. थैंक यू सो मच. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू दीक्षा, धैर्य, मोनिका मैम, थैंक यू सो मच. Thank you. Thanks everyone. Okay, I think we should wind up for today. Thank you so much, Ranjana ma'am and Sonika ma'am. And Sonika ma'am, really the explanation that you were giving for everything. And Ranjana ma'am, your questions, they were so mind blowing because I got to learn so many things. I have cleared my personal so many doubts out of the presentations, out of the PDFs, and out of the questions that you have shared. So really thank you. And over to you, Diksha. Yeah. Thank you, Monica ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. So I do hope everyone is of the same opinion as Monica ma'am too. So we can end today's session for day 3 of Decoding Mutual Fund workshop. And we'll be seeing you all tomorrow. Guys, everyone is requested to please fill the assessment form. You'll be graded accordingly. And if you have any questions, drop them on the WhatsApp group for any of the chapters that were taught till now. Any doubts will be appreciated, will be taken up by Ranjana ma'am and Sonika ma'am. So don't hold yourself back. Please be more interactive in the session so that you get to learn more from this webinar and this workshop. So thank you so much once again, Ranjana ma'am and Sonika ma'am, and all the participants for being here. Also, Monica ma'am for managing us today. So we'll all be meeting tomorrow. Good evening, everyone. Thank you so much. Thank you, Thank you. Diksha. Thank you, Thank you so Diksha. much. Thank you. Bye bye.